Oceans cover over 71% of the Earth's surface. Life on Earth originated in the seas, and oceans continue to be home to an incredibly diverse web of life. It is the habitat of over 230,000 known species. Out of this vast multitude of marine species, fishes play an important role in our food habits. The consumption of fish is known to have well-established health benefits, particularly for the heart and brain. But the appetite for fish is exceeding our ocean's ecological limits. Marine ecologists and scientists across the world think that overfishing is the biggest threat to marine ecosystems today. The modern fishing industry is dominated by fishing vessels that outmatch nature's ability to replenish fish. Giant ships using state-of-the-art fish-finding sonar systems can pinpoint schools of fish quickly and accurately. These ships are like giant floating factories with fish processing and packaging plants, huge freezing systems, and powerful engines to drag enormous fishing gear through the ocean. 90% of the large fish such as tuna, swordfish, marlin, cod, halibut, skate, and flounder have been fished out since large-scale industrial fishing began in the 1950s. Their depletion can cause a shift in entire ocean ecosystems where commercially valuable fish are replaced by smaller, plankton-feeding fish. Simply put, the fish don't stand a chance. हर एक इकोसिस्टम में ऐसे है ना कि एक प्रे है, एक प्रेडेटर है। तो अगर प्रे का पॉपुलेशन बढ़ गया या प्रेडेटर कम हो गया तो प्रे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। केरला कोस्ट में जब कैटफिश का पॉपुलेशन ओवर फिशिंग की वजह से कम हुआ, ये जो पफर फिशेस है, पफर फिश को कैटफिश खाता है, तो कैटफिश कम हो गया तो पफर फिश बहुत बड़ा, एंड पफर फिश बहुत नुकसान करता है, नेट्स को वो काटता है, उसको देव गॉट स्ट्रॉन्ग टीथ, तो नेट काट के नेट्स को डैमेज करता है, और बाकी जो छोटे छोटे फिशेस को भी वो पकड़ता है। तो वैल्यूबल पफर फिश को कमर्शियल मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो वो वैल्यूबल फिश को खाता है और नेट्स को डैमेज करता है। इसकी वजह से फिशरीज में एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। These changes endanger the structure and functioning of marine ecosystems and hence the livelihood of those dependent on them. India's seas are the spawning and breeding grounds of large varieties of fish species. India is the second largest fish producer in the world after China and accounts for more than 6% of the global fish production. India's marine and fish industry is worth more than 60,000 crore rupees. At least 3.5 million people in approximately 4,000 fishing villages situated along the Indian coastline earn a living from marine fisheries. However, fisheries resources in several parts of the country are under severe stress, and this is leading to an adverse effect on the fishermen community all over the country. One such fishing community is Maharashtra's Koli community. Mumbai, the financial capital of India, was named after Mumba Devi, the Koli stone goddess whose temples stand tall amidst the chaotic bustle of Babulnath market in South Mumbai. The names of some islands still endure. For example, Kolaba from Kol Aba, which means Koli estate, and Mazgaon, which is apparently derived from Machagaon, meaning fish village. Koli villages still exist in these areas and all along the coast, holding out amidst the traffic and skyscrapers. But the Kolis are in crisis. देखिए, मुंबई में एक बहुत ही पारंपरिक कहावत है या लाइन है कि मुंबई कोणाची तो कोळ्यांची, मुंबई कोणाची तो कोळ्यांची, मुंबई किसकी तो कोलियों की। Pollution, coastal development, mangrove degradation, overfishing, and foreign trawlers are all leading to a fall in fish catch. There are no fish near the shore. Fishermen have to invest in bigger vessels, use more diesel, and go further out into the sea. To know the extent of the crisis, we visited Manori, a fishing village around 50 kilometers from Mumbai. There we interacted with Mahesh Koli, a fisherman of the Koli community
who has been in this profession for the last 20 years. अभी ये फिशिंग में बहुत डिजिटल हो गया है, मच्छी बहुत कम आ रहा है। और अभी हमारे बोट में 10 जाले है। पहले 3-4 जाले लेके जाते थे ना, तभी 10 आदमी का पेट भर रहा था। अभी 10 जाले है, 4 आदमी फिर भी पेट नहीं भर रहा। Mumbai's oldest inhabitants and true natives are seeing the community slowly dispersing and the younger generations straying away from the traditional family business of fishing. पहले तो सब लोग मच्छी के काम में ही जाते थे, लेकिन अभी मच्छी की इतनी कमतरता हो चुकी है कि इतनी कम हो चुकी है कि उसके ऊपर अपना पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया है। अपना रोजी रोटी उसके ऊपर नहीं चलता है। तो अभी जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कॉल सेंटर और ये इधर उधर ज्वाइन करके अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। Ram Bhav Patil is a Koli community leader and the president of the Maharashtra Machhimar Kriti Samiti. He has actively been working for the fishermen community for the last 30 years. अभी तो नफे का कोई बात ही नहीं है। अभी घाटा ही घाटा होएगा। और अगर हम लोग कहीं फिशरीज मैनेजमेंट के लिए कोई कुछ करेंगे नहीं सरकार करेगी, नहीं हम लोग फिशिंग कम्युनिटी करेगी, तो फिर हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, कुछ बचने वाला नहीं है। समुद्र में कोई हाथ में आने वाला नहीं है और ये फिर भूखा मरने का चांस ज्यादा है। Apart from being the Mumbai Congress chief, Mr. Sanjay Nirupam has represented Manori village in the Lok Sabha. तो मुंबई बुनियादी तौर पर कोली समाज का शहर है और ऐसे में मुंबई का कितना भी विकास कर लें आप, अगर कोली समाज का विकास नहीं होता, अगर जो हमारा मच्छीमार समाज है उसके साथ न्याय नहीं हो पाता, उसका कल्याण नहीं हो पाता, तो उस विकास का कोई अर्थ नहीं है। One of the major factors behind the problem of overfishing is the use of Persian net by big mechanized trawlers. परसेंटेज भी बहुत है। वो लोग बड़ा मच्छी मारता है, उसमें छोटा मच्छी रहता है, वो केमिकल डालते हैं, उससे छोटा मच्छी मर जाता है। Trawlers use Persian net to capture schools of fish like tuna and salmon. Sometimes, fishing vessels deploy floating rafts called fish aggregating devices or FADs to attract fish in the open ocean. Large nets encircle the school of fish as well as other animals that may be attracted to the FADs. The bottom of the net is drawn shut to prevent the fish from escaping, and then the net and the fish are gathered in the fishing vessel. However, the use of Persian net poses serious ecological threats as well as threats to the traditional fishermen community who have been asking for a ban on the use of Persian net. किती वेळा सांगितलं, आमच्या किती वेळा मोर्चे पण झाले, महाराष्ट्र कृती समितीच्या बरोबर आमचे किती पण मोर्चे झाले इथे मुंबईला आपल्या इथे आझाद मैदानला, पण ते लोक किती समस्या मांडतच नाही। किती वेळा सांगितलं पर्सनल बंद करा ते बंदच नाही करत। आणि दुसरं सांगितलं आता मासली कमी झाली, याचं सरकारचं उद्दिष्ट काय, कसं काय याची हे करायचं। Mr. Eknath Khadse, who holds the agriculture portfolio, is also the fisheries minister of Maharashtra. पर्सिन नेट जो यूज़ करते हैं ट्रॉलर्स वाले, तो उसमें ट्रॉलर्स वाले यूज़ करते ये प्रॉब्लम नहीं था। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो नेट यूज़ करते हैं उसमें वो छोटे छोटे मछली भी आती है, जब पकड़ते हैं तो अंडी भी आती है, छोटी छोटी मछली के बच्चे भी उसमें जो आ जाते हैं जो कोई काम के नहीं रहते, और ये आने के बाद तो बाहर फेंक देते हैं। तो इससे जो आगे आने वाली उपज है वो कम हो जाती है, और इसलिए गवर्नमेंट ने इसके बारे में 10 दिन पहले ही निर्णय लिया है कि अभी जो नेट यूज़ करते हैं बस नेट, उसमें से जो पहले हम लोग छोटी सी साइज़ के उनकी परमिशन देते थे जालियों के, वो जालियों के जो छेद है वो बड़े कर दिए गए हैं। और इसके लिए कि उसका एक पहला इफेक्ट हो गया कि उसमें से सब जो छोटे छोटे मछलियों के बच्चे हैं या अंडी है वो अभी ठीक ढंग से जाने लगे। According to the Central Marine Fisheries Research Institute, the coastal waters near Mumbai can sustain around 8,000 fishing boats, but in practice, more than 17,000 boats plunder the region. Many of these illegal trawlers come from neighboring states of Gujarat, Goa, and Karnataka. नेवी है, कोस्ट गार्ड है, सागरी परीक्षा है, ये उनका काम है ना, उनको चेक करना कौन सा बोट किधर से आ रहा है। कागज पे है
इस समुद्र में कुछ नहीं है, कुछ ये इधर आता है, कर्नाटक का इधर आता है, इधर का कर्नाटक जाता है, गुजरात का इधर आता है, गुजरात कर्नाटक जाता है। कोई भी कैसा भी फिशिंग करता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कितना इंजन बड़ा इंजन लगाता है, क्या करता है। अभी तो नया तरीका कर्नाटक वाले ने, बेंगलोर वाले ने किया है, वो 350-500 आसपास का इंजन बिठाते हैं और मिड वाटर ट्रोलिंग करता है। मिड वाटर बोले तो जाल तो फंसता नहीं है जमीन पे, तो इसके कारण वो स्पीड से जाता है, और स्पीड में जो भी मच्छी आता है, स्पीड बोले तो 5 नॉटिकल माइल का स्पीड होता है, ये स्पीड पे चलता है। उसमें फिर अगर टर्टल आ गया, अगर उसमें व्हेल आ गया, शार्क व्हेल आ गया, वो फंस गया, क्योंकि वो उनको हवा लगता है, ऊपर आके हवा लेना है, वो चांस नहीं मिला तो मर जाता है। मरने के बाद वो ट्रॉलर वाला निकाल कर फेंक देता है, फिर आके समुद्र अपने किनारे पे लगता है, अरे ये मर गया, शार्क मर गया, व्हेल शार्क मर गया, व्हेल मर गया, डॉल्फिन मर गया। हाँ, ये इसके वजह है। अभी The government has taken some action to check the problem of illegal trawlers from other states operating in Maharashtra's coastal waters. अभी देखा गया है 1-2 साल के अंतर्गत तो यहाँ से कर्नाटक, गोवा, यहाँ के लोग भी यहाँ आने लग गए, और वो आने के बाद यहाँ मारामारी होती है, ये होते हैं। और तो इसलिए मैंने हमारे गोवा के मिनिस्टर और कर्नाटक के मिनिस्टर से, तीनों से भी मैंने बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जब उधर नहीं आते हैं तो आप लोगों का यहाँ एनक्रोचमेंट अच्छा नहीं है, और इससे कानून और व्यवस्था में भी हम लोगों को तकलीफ होती है। अभी उन्होंने मुझे वादा किया है कि ऐसा नहीं होगा, हम रोक लगाएंगे। मैंने उनको बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो हम कठोर कानून का उपयोग करेंगे। हमारे लोगों को अगर तकलीफ होंगी तो महाराष्ट्र में जो हमने कानून बनाए MPDA वगैरह, तो हम उनको पकड़ के ले आएंगे। तो हमारा तीनों का एक बीच में बैठकर समझौता हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत भी मिलना चाहिए और तकलीफ भी कम होना चाहिए। उसके साथ साथ जो वो समुद्र में जाएंगे तो वो रजिस्ट्रेशन करेंगे कि हम समुद्र में जा रहे हैं, हमारे से एक पहचान पत्र लेंगे, और समुद्र में अगर कहीं भी घूमते रहेंगे तो अगर पूछेंगे हमारा आदमी समुद्र में जाके चेक करते हैं तो उसके पास एक पहचान पत्र मिलेगा, तो ही उसको पकड़ेंगे। नहीं तो दूसरे लोग भी यहाँ आके बहुत मछलियाँ पकड़ते हैं, और इसके कारण भी मछलियाँ अपने यहाँ कम हो रही है। The law created to protect the interest of the fishermen can sometimes be used as a tool of harassment against them. म्हणजे आम्ही कोले आहे, म्हणजे आम्ही कसं डेलीचं आमच्याकडे सर्व कागदपत्र आहे, सर्व आहे, तरी पण आम्हाला विचारतात तुम्ही कुठून आले, तुम्ही तुमचे हे नाही दिसे, हे नाही ते नाही, पण बघा ना आमच्याकडे पास आहे, बॉमेटिक आहे, मासेमारी परवाना आहे, VRC आहे, मग दुसरं काय पाहिजे तुम्हाला? ज्यांच्याकडे नाही त्यांच्याकडे तुम्ही काहीच नाही करत, आणि ज्या आमच्याकडे सर्व आहे तरी पण आम्हाला तुम्ही टार्गेट करता का? म्हणून आमच्या मनातला पण दुःख तुम्ही समजा ना। ऑफिशियली हमारे पास सब है, फिर भी हमको तंग कर रहा है। Mumbai's 15 million inhabitants dump their sewage into the sea with minimal treatment. The water is also polluted by chemical manufacturing units, oil slicks, and garbage. This results in the depletion of marine ecosystem. समंदर में आपको मुंबई का पानी छोड़ना है, छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए, उसका एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। नियमित तौर पर गंदा पानी अगर समुद्र में छोड़ेंगे तो समुद्र के का जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा, और समुद्र का जीवन नष्ट होगा तो समुद्र के किनारे रहने वाले हम लोगों के जीवन पर भी उसका असर पड़ेगा। इतना थैला है वो बाजू, कितना थैला है, तो प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। माहिम का, अंधेरी का गटार भी उधर छोड़ देते हैं अपना, ये तो मुंबई का पानी इधर ही आता है ना, OTP इधर आता है, भर्ती पे इधर आता है, OTP नीचे जाता है, तो प्रदूषण में नजदीक आता नहीं। बड़ा मछली छोटा छोटा रहता है, वो क्वालिटी पे नहीं रहता है, तो मतलब छोटा मच्छी मारने से कुछ फायदा भी नहीं। पोल्यूशन का तो आप देखेंगे तो बम्बई एरिया है ना, यहाँ से जाएंगे तो 5 नॉटिकल माइल है ना, ये एरिया पूरा प्लास्टिक, वो मच्छी के कल्ले में जाता है, मच्छी मरता है। The Brihan Mumbai Municipal Corporation
the civic body that governs Mumbai, is responsible for waste management of the city. BMC is India's richest municipal organization with an annual budget larger than some of the small states of India. किसी भी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए आपको वेस्ट डिस्पोजल यूनिट बनाना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी रास्ते पर कचरा नहीं दिखता, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान के जितनी म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो टैक्स तो ले लेती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ले लेंगे, वाटर टैक्स ले लेंगे, ऑक्ट्रॉय ले लेंगे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करते हुए शहर के लोगों को साफ सुथरा वातावरण मिले, इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का खर्च नहीं हो कर पाते। मुंबई जिसके कॉरपोरेशन का बजट 34,000 करोड़ रुपए है, 34,000 करोड़ रुपीज इज द एनुअल बजट ऑफ मुंबई कॉरपोरेशन, जिसमें लगभग 5,500 करोड़ रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर है। उस 5,500 करोड़ का अगर सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे वेस्ट डिस्पोजल यूनिट्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे डिसैलिनेशन के काम शुरू हो सकते हैं, बहुत सारा रिसाइकलिंग का काम हो सकता है। इसलिए सरकार ने एक नया कानून इसके लिए बनाया है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए और पर्यावरण का समतोल रखने के लिए हम लोगों ने बनाया कि कोई भी समुद्र में सीधा पानी ना डाले। अब पानी कोई भी करना, अगर समुद्र में करना है तो उसको वाटर ट्रीट करके ही डालना चाहिए। इसलिए हर जगह कंपलसरी वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने के लिए सरकार ने अभी जोर दिया है, और किसी को भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के सिवा परमिशन अभी नहीं मिलेगी, और जो पहले है उनको भी नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कराने के लिए हमने कानूनन सख्ती कर दी है। धीरे धीरे ये जो पोल्यूशन युक्त पानी आता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। Mangroves, which are the natural floodgates against calamities like tsunamis, primarily serve the purpose of acting as breeding ground for fish. फिशरीज में उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बड़े बच्चे हैं वो समुद्र में उसका अंडा डालता है, उसके जो छोटे छोटे पिल्लू हैं वो मैंग्रोव के अंदर आके छुप जाता है, वहाँ उनको फूड भी मिलता है, उनको शेल्टर भी मिलता है। तो वहाँ जाके बड़े मछली वो मैंग्रोव के अंदर घुस के उसको खा नहीं सकते। सो दैट इज़ लाइक ए सेंचुरी फॉर दी यंग फिशेस। तो वहाँ से बड़े होकर वो फिर समुद्र में चले जाते हैं, फिर वहाँ ब्रीड करते हैं, बच्चे फिर आ जाते हैं। सो जहाँ एक मैंग्रोव जहाँ है फिशरीज को उसका बहुत डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। The fishermen have traditionally known the importance of mangroves for their livelihood and hence have lived in peaceful coexistence with mangroves since time immemorial. हम लोग वर्ल्ड फिशरी डे मनाते हैं और उस दिन हम लोग ये मैंग्रोव फील्ड है उसमें जाकर पूजा करते हैं मैंग्रोव फील्ड का। हे उनको बोलते हैं मैंग्रोव फील्ड हे आम्ही तुझी पूजा करतो, आम्ही तुम्हाला कापणार नाही, हे तुम्हाला नाश करणार नाही, तुम्हाला वाढवू, तुम्ही आम्हाला मुआवजा द्या, मच्छी देना, 7 पीढ़ियों को पूरेगा इतना मच्छी देना, ऐसा हम प्रार्थना करता है उसको। However, in recent times, the sea has been encroached upon. Large parts of it have been reclaimed. Mumbai's prime commercial real estate, Back Bay Reclamation, and the Bandra Kurla complex have been built on reclaimed land. Mangroves have also been hacked to make way for swanky apartments and offices. मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है अर्बन एरियाज में, वो भी मेनली डंपिंग अपने रियल एस्टेट के लिए डेवलप करने के लिए, अपना रीडेवलपमेंट होता है मुंबई में, नए नए बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट होता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको डंपिंग करता है, उसकी वजह से मैंग्रोव्स का डिस्ट्रक्शन होता है। कुछ जगह पर बंडिंग करता है तो बंडिंग की वजह से वाटर फ्लो कम हो जाता है, तो इस तरह के डिस्ट्रक्शन होता है। In October 2005, the High Court had ordered a ban on the destruction of mangroves along the state's coast. However, things have not gone as planned. आणि कोर्टाने सांगितलंय का बाबा मँग्रोव्ह कापू नका, मग तुम्ही कुठे फुल बांधणार, मँग्रोव्ह जोड बांधणार ना, मग तो कोर्टाचा आदेश पाडणार कोण नुसतं तुमची सरकारच्या ह्याच्यातच नाही करणार, मग काय त्या फायदा काय ते कोर्ट बांधून, त्यापेक्षा ते कोर्ट साईडला ठेवा आणि तुमचंच का चालून घ्या ना, त्या कोर्टाचं कशाला ऐकता, कशाला जाता तुम्ही, न्याय मागायला कोर्टात का जाता, ती खलकल आहे आम्हाला, कोर्टाचं ऐकत नाही म्हणून काय हे सर्व चाललंय। According to Mr. Vasudevan, awareness about the mangrove protection is already high in urban areas
and the solution lies elsewhere. जो मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन करता है मुंबई में, उसको जागरूकता का जरूरत नहीं है, एक्शन की जरूरत है। और एक्शन हम लेते रहे हैं। हमने अभी तक 2500 घर मैंग्रोव में जो था हमने डेमोलिश किया है, और कुछ पक्का बिल्डिंग्स भी हमने डेमोलिश किया है, और जहाँ जहाँ डंपिंग होता है हमने ऑफेंसेस केस बुक किया है, लोगों को अरेस्ट किया है। तो इस तरह की जो प्यूनिटिव एक्शन हम ले रहे हैं, आई थिंक दैट इज मोस्ट इफेक्टिव। It's a known fact that the interests of the fishing industry cannot be safeguarded without the empowerment of the fishing community. Their situation demands serious attention from those in power. अगर खेती वाले को, शेतकरी को जो है, अगर बारिश कम हो जाए तो उनका दुष्काल जाहिर किया जाता है, बारिश ना हो तो भी किया जाता है, बारिश ज़्यादा हो तो भी उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, मच्छी कम हो ज़्यादा ये हो तो उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। जब समुद्र में मछलियों का अकाल पड़ गया तो जिनकी रोजी रोटी मछली है, फिशिंग के जरिए जो अपना जीवन चलाते हैं, उनको कंपनसेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश अभी तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि इसको मेजर करने का कोई इंतजाम नहीं है। समुद्र में कितनी मछली है और कितनी मछली नष्ट होकर कितनी मछली बची है, ये आज तो कोई बता ही नहीं सकता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे मच्छीमार समाज के लिए निश्चित तौर पर सरकार के पास कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, आज तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, पर कोली समाज के लिए बहुत सारी मदद करने का निर्णय हम लिया है। पहले से ही चल रही है, कई योजना है। ये जो स्पीड बोट है, ये स्पीड बोट भी हमको 50% सब्सिडी, 50% लोन पे दे रहे हैं। पहले तो हम 90% सब्सिडी स्पीड बोट के लिए देते थे। छोटे छोटे जो बोटें चलाते उनके लिए भी हमने निर्णय लिया है। डीजल और पेट्रोल में भी बहुत सारी सब्सिडी हम लोग उनको देते हैं, और उसके लिए भी एक फ़ायदा उनको मिलता है। आगे चल के मछली पकड़ने के बाद बाहर तक बेचने के लिए उनकी व्यवस्थाएं जो करते हैं, तो चिलिंग प्लांट है, कूलिंग प्लांट है, प्री कूलिंग प्लांट है, ये भी खड़े करने के लिए हमने सब्सिडी देने की शुरुआत की है। हर जगह बेचे जाने के, तो शहर शहर में मछली मार्केट बनाने के लिए NFDC जो है हमारा नेशनल फिशरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे गाँव में अभी मछली मार्केट बनाने के लिए 2-2 करोड़ रुपए, 1-1 करोड़ रुपए देने की शुरुआत कर रखी है। उससे भी बड़ा फायदा होता है। अगर कोई आता है, ये मछलियों के व्यापार में आना चाहता है, मछली सुखाने के लिए आता है, तो जितनी ज़मीनें समंदर के पास है, बाजू में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीनें हैं, वो मछली सुखाने के लिए उनको कम दाम में देने का भी निर्णय हमने लिया है कि छोटे से 100 रुपये भरो, 500 रुपये भरो, पूरी मछलियाँ वहाँ से उनको सुखाने के लिए भी हम लोग अभी ज़मीन देते हैं। पहले भी देते थे, पर आज हम लोग निर्णय लिया है कि ऐसे ज़मीन उनको दे, क्योंकि सुखाने के बाद भी बेचा जाए, उनका भी पेट भरे। और इसलिए बड़े ट्रॉलर वालों को जहाँ मछलियाँ पकड़ते, पसनेट वाले, उनको अभी परमिशन हमने खाली 30 दिसंबर तक की ही दी है कि 30 दिसंबर तक वो मछली पकड़ सकते हैं। 30 दिसंबर के आगे तो 1 जून तक कम से कम मछली नहीं पकड़ेंगे। तो छोटी मछली पकड़ने वाले को हमने सहूलत दे दी कि आप 12 महीने, साल भर आप मछलियाँ पकड़ सकते हैं। मतलब आगे चल के ये मच्छीमार लोग इस ढंग से क्या बोलते हैं कि कम ना हो या उनको नुकसान ना हो, इसके लिए सरकारी योजनाएं बनाती है। Any strategy dealing with the management of marine resources, including fisheries, needs to use an ecosystem approach, which considers the entire ecosystem and all the species inhabiting them. There is an immediate need to empower the fishing community and resolve their grievances to manage the marine resources together. It's time we start realizing the urgency of this situation. अभी ये साल इतना बुरा मतलब ये आया वक्त आया है ना, ऐसा ही 2 साल चल गए ना, तो जैसे खेती वाले जो अपनी जान देते हैं, वैसा कोली लोग भी जान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग नहीं करेगा, लेकिन हमारी बात तो सुनो ना सरकार।